بلدیہ عظمی کراچی کا بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کا فیصلہ بنس گارڈن میں 1927 میں بنائے گئے 4 کنویں فعال کر دیے گئے۔ آئی چندری گڑھ روڈ، آرٹس کونسل اور سندھ سیکریٹریٹ کے اطراف بارش کا پانی کھڑا نہیں ہوگا۔ بارش کا ذخیرہ ہوا پانی پارکوں میں استعمال کیا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بنس گارڈن میں 1927 میں بنائے گئے 4 کنویں فعال کر دیے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شعیب مختار۔ دور میں بنس گارڈن میں بنائے 4 کنویں فعال کر دیے گئے۔ بلدیہ عظمی کا بارش کے پانی کو پارکوں میں استعمال کرنے کا فیصلہ۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے احکامات پر گزشتہ برس ان کنووں کو فعال کیا گیا تھا۔ بنس گارڈن کے اطراف سڑکوں پر جمع پانی کنووں میں ذخیرہ کیا جائے گا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے شہر کے دیگر پارکوں میں انتظامات کیے جائیں گے۔ دیکھیے، اس کا بہتر جواب تو آپ کو ٹاؤنز سے مل سکتا ہے۔ جو کے ایم سی کی بنیادی ذمہ داری ہے، وہ کے ایم سی حد الامکان کوشش یہی کرتی ہے کہ اس ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے سر انجام دے۔ اور آپ نے دیکھا کہ چاہے بقرعید ہو یا اب یہ بارشوں کا سلسلہ ہو، جو ہماری رسپانسبلٹی میں ہمارے ایریاز آتے ہیں، 106 سڑکیں ہم نے ان کو کلیئر رکھا۔ جہاں کہیں بھی پانی کی کوئی شکایت آئی، اس کو بر وقت پمپنگ کے ذریعے یا سکشن کے ذریعے ہم نے کلیئر کرا دیا۔ ٹاؤنز کو بھی اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں ایک پرو ایکٹیو اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے۔ بنس گارڈن میں بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ایک اور ٹینک بھی بنایا جا رہا ہے، جس میں 1 لاکھ گیلن بارش کا پانی ذخیرہ کیا جا سکے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ ناظرین، بتاتے چلیں سمندر میں نہانے پر پابندی، کمشنر کراچی کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ پابندی کے باوجود عوام کی بڑی تعداد ہاکس بے کے ساحل پر نہانے میں مصروف ہیں۔ ٹرٹل بیچ پر نوجوان ڈوب کر ہلاک ہوا۔ لائف گارڈ کہتے ہیں کہ پابندی کے باوجود شہری کھلے سمندر میں نہانے آ رہے ہیں۔ تفصیلات اسامہ ملک کی رپورٹ میں جانیے۔ بھیپڑتا سمندر، دھاڑتی لہریں، سمندر میں نہانے پر دفعہ 144۔ شہری کمشنر کراچی کے احکامات کو سنجیدہ لینے کو تیار نہیں۔ چھٹی کے روز عوام کی بڑی تعداد نے ساحل سمندر کا رخ کر لیا۔ پابندی کے باوجود عوام کی بڑی تعداد ہاکس بے پر نہانے میں مصروف دکھائی دیے۔ لائف گارڈز کا کہنا تھا پابندی کے باوجود عوام کی بڑی تعداد ساحل پر آ رہی ہے، یہاں کیسے پہنچ رہی ہے اس کا معلوم نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، یہاں پہ کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ اپنی محنت سے، اپنی جوش سے ڈیوٹی دے رہے ہیں تاکہ پبلک کو نقصانات نہ ہو۔ تاکہ 144 لگی ہے لیکن پبلک پھر بھی آ رہی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ عوام کا کہنا تھا کہ چھٹیاں ہیں اس لیے یہاں آئے ہیں، زندگی سب کو پیاری ہے، لائف گارڈ موجود ہیں اس لیے نہا رہے ہیں وغیرہ، مطلب انجوائے کرنے تو آئی بھی ہے، لیکن یہ لائف گارڈ خیر کسی کو آگے نہیں جانے دے رہے۔ ہماری سیفٹی کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ جو بھی ذرا سا بھی آگے جاتا ہے یہ الرٹ کر دیتے ہیں۔ جان تو پیاری ہے لیکن بس اب فیملیز ہیں، کیا کریں، جاتے ہیں، سب بچے ہیں، چھٹیاں ہیں، ویکینڈ ہے، لیکن لائف گارڈ کافی سیفٹی کے لیے ہمارے اچھے ہیں، یہ ہمیں سکون ہے تھوڑا یہاں۔ صبح بھی ٹرٹل بیچ پر نوجوان ڈوب کر ہلاک ہوا۔ رواں ماہ کے دوران 5 افراد سمندر کی نظر ہو کر اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ کیمرہ مین حارث کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ لیاری موسیٰ لین کوثر مسجد کے قریب عمارت کی چھت گرنے سے بچی اور مرد جاں بحق ہو گیا، جبکہ خاتون سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ عمارت خستہ حال تھی کہ رات گئے اچانک 4تھی منزل کے فلیٹ کی چھت گر گئی۔ عمارت کو خالی کروا کر سیل کر دیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ قائد میں ایک اور حادثہ، 2 قیمتی جانیں نکل گیا۔ لیاری موسیٰ لین میں فلیٹ کی چھت گرنے سے ایک بچی اور باپ جاں بحق، جبکہ خاتون سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ شناخت 3 سالہ علینا اور 42 سالہ دانش کے نام سے ہوئی۔ عمارت کو خالی کروا کر سیل کر دیا۔ پولیس اہلکار بھی عمارت کے باہر پہنچ گئے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق عمارت میں 36 فلیٹ موجود ہیں۔ بلڈنگ 30 سالہ پہلے تعمیر کی گئی۔ کھارے پانی کی وجہ سے عمارت خستہ حال ہو گئی۔ یہاں پر پورے بلڈنگ میں تو رہتا ہے تقریباً 36 فلیٹ ہے، تو آپ اندازہ لگا لو سینکڑوں میں ہوئے گی، سمجھے نا۔ اور یہ 4تھی منزل کا جو ہے نا چھت نیچے آیا ہے، 3ری پر وہاں بچے تھے، ان پر آ کے سیدھا باپ بیٹی جو ہے نا فوت ہو گئی۔ اور علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ہم اس کو خالی کرنے والے تھے، لیکن یہ حادثہ پیش آیا۔ گھر والوں کے ساتھ بیٹھے تھے، تقریباً کچھ اس میں سے افراد جو ہے نا کھانا کھا کے وہ کچن کی طرف چلے گئے تھے، اور باقی جو ہے نا وہ کمرے کے اندر تھے۔ کمرے کی چھت اچانک سے بیٹھ گئی۔ یہ جو ہے نا بارش کی وجہ سے بھی، اور یہ نا بلڈنگ ویسی ہی کمزور ہے، کھارے پانی کی پوری بنی ہوئی ہے۔ عمارت کے رہائشی رشتہ داروں کے گھر چلے گئے۔ عمارت حادثے میں جان سے جانے والا شخص کھجور مارکیٹ میں کام کرتا تھا،
जबकि जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इनकी हालत खतरे से बाहर है। कराची में मानसून के पहले स्पेल ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी की कली खोल कर रख दी। दरमियाने दर्जे की बारिश में ही आधा शहर ज़ेर-ए-आब आ गया। नशेबी इलाके के मकीनों के लिए अब्र रहमत ज़हमत बन गई। तफसीलात अक्सा शेख की रिपोर्ट में जानिए। मानसून का पहला स्पेल शहर कायद में बारिश का सिलसिला रात और सुबह सवेरे वक्फे से जारी रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला पीर तक जारी रहेगा। शहर कायद में गुज़िश्ता रोज होने वाली मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। गलियों और शाहराहों पर निकासी आपके बेहतर इंतजामात ना होने के बायस पानी खड़ा रहा। महकमा मौसमियात ने मानसून की पहली बारिश के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। शहर में सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में हुई, जहाँ 58.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सऊदिया टाउन में 47.5, गुलशन बीमार में 37.4, गुलशन हदीद में 37 और शारा फैसल पर 32, मुसव्वर बैस पर 10 और सबसे कम बारिश बहरिया टाउन में 6.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। अक्सर शेख T21। मानसून बारिशों का पहला स्पेल नॉर्थ नाजिमाबाद का शादमान और कलंदरिया नाला उबलने के बाद इंतज़ामिया को होश आ गया। KMC के महकमे म्यूनसिपल सर्विसेज ने बरसाती नालों की सफाई शुरू कर दी। बताते चलें कि शहर के बासी मुश्किल में हैं। मानसून बारिशों का पहला स्पेल नॉर्थ नाजिमाबाद का शादमान और कलंदरिया नाला उबलने के बाद इंतज़ामिया को होश आ गया। KMC के महकमे म्यूनसिपल सर्विसेज ने बरसाती नालों की सफाई शुरू कर दी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में जानिए। इंतज़ामिया की गफलत के बायस मॉडल कॉलोनी रोड बारिशों में धंस गया। बरसात के बायस सड़क का दूसरा ट्रैक भी सफ़ाए हस्ती से मिट गया। शहरियों के लिए सड़क से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में जानिए। किसी भी तरक्याती काम से कबल उसके मुतबादिल रास्तों का बंदोबस्त लाज़िम व मलजूम है, मगर इंतज़ामिया मॉडल कॉलोनी के मरकजी रोड पर सीवरेज लाइन बिछाने और गैस लाइन के लिए रोड कटिंग के इजाज़तनामे जारी करते वक्त मुतबादिल फराहमी के मामले को भुला बैठी। उनकी बारिश हुई तो मॉडल मोड़ था RCD ग्राउंड, सड़कें बैठ गईं, जहाँ कहीं करंट फैला तो कहीं गाड़ियाँ धंस गईं। बारिशों में हादसा ये हुए कि परसों की कल की बात है, कल बारिश हुई, यहाँ पे करंट से बंदा मरते मरते बच गया। उसके अलावा ये जो गड्ढे आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, इसमें कितनी गाड़ियाँ फंसती हैं, रोज़ की तादाद में कोई 30 से 40 गाड़ियाँ फंसती हैं। शहरी कहते हैं कमर्शियल और रिहायशी इलाके होने के बायस मॉडल कॉलोनी का रोड इंतहाई अहमियत का हामिल है, मगर इंतज़ामिया गफलत की नींद सो रही है। 5-6 हुआ, कल 3 बंदों को तो शार्ट लगा, बाइक दी गिरा है। इधर बंदे को शार्ट लगा, बाइक दी गिरा, उसको कोई उठाने वाला नहीं था। बिजली वाले आए, चेक करके चले गए, उन लोग बोल रहे सही है। मॉडल कॉलोनी रोड के दौरान बारिश तबाही के बावजूद मॉडल टाउन इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के मज़े लेते दिखाई दी, जबकि रिहायशियों ने मुताल्लिक़ा इदारों से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अजलान शिबा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। बारिशों का सिलसिला शुरू होते ही मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ी। सूबे भर में मलेरिया और डेंगू की शरह में इजाफा हो गया। रवां साल अब तक 65,000 अफराद मलेरिया का शिकार हो गए, जबकि 547 अफराद डेंगू के मरज़ में मुब्तला हो गए। कराची समेत सूबे भर में बारिशों के बाद डेंगू और मलेरिया के मच्छरों की अफजाइश में इजाफे का खदशा पैदा हो गया है, जिसके पेश नज़र डिप्टी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध डॉक्टर मुश्ताक अहमद शाह ने आलमी इदारा सेहत से मच्छरदानियाँ, अद्वियात और अमले की ट्रेनिंग के लिए ख़त लिख दिया है। रवां साल के दौरान सिंध भर में 65,116 अफराद मलेरिया का शिकार हुए, जबकि रवां साल के दौरान सिंध भर में 295 अफराद डेंगू का शिकार हुए, जिनमें से 260 अफराद का ताल्लुक कराची के मुख्तलिफ अजला से था। अवामी मसाइल पर बात करते हुए आपको बताएं कि कराची से गैस और बिजली के मसाइल का खात्मा ताहाल नहीं हो सका, जिससे शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। शहर में बारिश के मौसम के दौरान गैस की फराहमी में कमी बरकरार है, जबकि तलब में इजाफा देखा जा रहा है। ओल्ड सिटी एरिया, बल्दिया, कायदाबाद और मवाज कोट समेत कई इलाके मुतासिर हैं। गैस के ज़खायर में 4 से 5 सालों में कमी आई है और LPG सिलेंडर्स अवाम की पहुँच से बाहर हो गए हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बारिश के दौरान नशीबी इलाकों में हिफाजती तदाबीर के तहत बिजली की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल की जाती है, जो पानी के उतरते ही बहाल कर दी जाती है कि इलेक्ट्रिक का अमला मौसमी सूरत हाल में मुतहर्रिक है।
1 जुलाई से गैस कीमतों में इजाफे का फैसला ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा के एलामिये के मुताबिक इजाफे का इतलाक घरेलू सार्फिन पर नहीं होगा। घरेलू सार्फिन के लिए सिर्फ माहाना फिक्स्ड चार्जेस में इजाफा किया गया। घरेलू सार्फिन रोटी तंदूर, कमर्शियल, जनरल सेक्रेटरी, CNG, सीमेंट और खाद के लिए गैस की कीमतें तब्दील नहीं की गई। हुकूमत ने बल्क सार्फिन, पावर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतें बढ़ाई हैं। धाबीजी पंपिंग स्टेशन को बिजली की फराहमी मुतासिर है, ताहम के इलेक्ट्रिक का अमला फॉल्ट की दुरुस्तगी और मरम्मत के काम में सरगर्म है, जबकि स्कीम 33 के पंपिंग स्टेशन मामूल के मुताबिक फ़ाल हैं। कराची के इलाके स्कीम 33 के बड़े पंपिंग स्टेशन NE के 2 और 3 समेत वाटर बोर्ड के दीगर पंपिंग स्टेशन को बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक धाबीजी पंपिंग स्टेशन में बिजली का तातुल ज़ेर ज़मीन केबल फॉल्ट के बायस हुआ। सिंध सरकार की दी गई डेडलाइन 30 जून को कल ख़त्म होगी। महकमा स्कूल तालीम में असातिज़ा की भर्तियों का अमल कल मुकम्मल होगा। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 30 जून को यानी कल तक प्राइमरी और जूनियर स्कूल टीचर्स की भर्तियों का अमल कल तक मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद किसी किस्म की कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी। जबकि जो उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट में शामिल थे उनके अरमानों पर पानी फिर गया। जबकि इस वक्त तक सिंध हुकूमत मजमूई तौर पर 1 लाख असातिज़ा की भर्तियां कर चुकी है। पाकिस्तान के लिए एक और खुशखबरी, पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में नुमायां बेहतरी आई है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तान का पासपोर्ट अब दुनिया के टॉप 100 पासपोर्ट्स में शामिल हो चुका है। 2021 में पाकिस्तान का दर्जा 113वां था, जबकि 2025 में यह अहम बेहतरी के साथ बेहतर मकाम पर आ गया है। कराची की तामीर और तरक्की के लिए शब और रोज़ मेहनत करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद से गुफ्तगू। कहा, कराची वालों ने बिलावल भुट्टो के विजन पर एतमाद करके पीपल्स पार्टी को कामयाब किया। डिप्टी मेयर कराची की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने KMC के जारी तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को आगाह किया। कराची की तामीर और तरक्की में शब और रोज़ मेहनत करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कराची के लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन पर एतमाद करके पीपल्स पार्टी को कामयाब किया। कराची की तामीर और तरक्की में बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन को आगे बढ़ाएं। डिप्टी मेयर कराची ने मलीर समेत कराची की मजमूई सियासी सूरत हाल से सदर मुमलिकत को आगाह किया। बताते चलें, मलीर में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने का आज़म। पुलिस मोबाइल्स, रिजर्व नफरी, पुलिस और रेंजर्स के अफसरान और जवानों की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूस के रूट्स पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। स्काउट्स भी पुलिस के हमरा सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद। गवर्नर सिंध कामरान खान तेसूरी कहते हैं, मुहर्रमुल हराम का एहतराम हम सब पर लाजिम है। इस्लाम दुश्मन ताकतों को कोई मौका नहीं देना। आपस के मसाइल को मिलजुल कर हल करना होगा। गवर्नर सिंध के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम से मुलाकात। मज़ीद तफसीलात सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में जानिए। मुहर्रमुल हराम में मजहबी रवादारी बरकरार रखने के लिए गवर्नर सिंध मुतहर्रिक। माह मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस मौके पर मजहबी रवादारी, इत्तेहाद और भाईचारे के फरोग के लिए गवर्नर हाउस सिंध में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जहां मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की। इस्लामी तालीमात पर अमल करके ही हम माशरती मसाइल का खात्मा कर सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि इस महीने में हमें ये देखना है कि जो कुर्बानी का जज्बा, जहाद का जज्बा,
साबित कदमी का जज्बा हमें इस करबला के वाक़े से मिलता है। इसकी मिसाल ना इस्लाम की तारीख में मिलती है, ना मिल सकती है। क़यामत तक के लिए ये जो महीना है, ये हम सब मुसलमानों के लिए एक मिसाल है। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी ने ईरान के किरदार को सराहा और दुश्मन के सामने डट जाने पर खराज तहसीन पेश किया। इन्होंने कहा कि ईरान को सलाम पेश करता हूं, जिसने आंखों में आंखें डालकर दुश्मन का मुकाबला किया। ईरान ने ये साबित किया है, जैसे मेरे भाई ने कहा कि मुसलमानों की लड़ाई लड़ी है, इस्लाम की लड़ाई लड़ी है। मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं। चाहे ताकत में छोटे थे, तादाद में कम थे, लेकिन आंखों में आंखें डालकर दू बदू जवाब देना, ये किसी ऐसी ताकत और हिम्मत से कम नहीं है जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता की है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा शब्बीर हुसैन मीसमी और दीगर उलमाए कराम भी मौजूद थे, जिन्होंने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की अहमियत पर जोर दिया। कैमरामैन नवीद उर रहमान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।